it's your girl Shalini. Welcome back. I really hope you all are doing well. So today's video is going to be teenager makeup look. This makeup base is very lightweight, it's skin-like, it's so pretty and it's super fresh. So without further ado, let's begin. Alright, so this is my bare skin, and before I do my makeup routine for teenagers, it's very important to prep my skin for the makeup and do my skincare routine. So आप लोग ये वाला skincare routine follow कर सकते हो, and having a skincare routine is extremely important no matter what age group you belong to or no matter what skin type that you have. Dry, oily combination skin, everyone should have a proper skincare routine, and this one is just basic skincare routine: cleansing, toning, moisturizing, and lastly protecting your face using a good quality sunscreen. आप अपना skincare अच्छा रखोगे तो you feel good about your skin looks very healthy, and also your makeup looks very healthy on your skin and looks good on your skin. Alright, so I've already cleansed my face. Next step that I'm going to do is use a facial razor and some aloe vera gel to remove my facial hair. So I do get facial hair. I have this condition which is called PCOD, जिसकी वजह से मुझे facial hair आते हैं, and मुझे पता है कि teenagers को facial hair आते हैं. You know, we have mustache, we have bushy eyebrows, we have unibrow. When I was a teenager, I had unibrow, and I had so much of hair मेरे upper lip area में. So first thing that I'm gonna do is take some aloe vera gel on my fingers and apply it over my upper lip area and also my cheeks, my neck. If you have extremely sensitive and acne prone skin, use aloe vera gel on your face as a lubricant. But हाँ, patch test कर लेना. कुछ लोगों को aloe vera से भी allergy होती है. I'm not allergic to aloe vera. And now I'm gonna use my facial razor. Make sure जो razor आप use कर रहे हो उसमें ऐसा zigzag pattern होना चाहिए. Okay, otherwise you can cut yourself. Okay, don't use a blunt razor on your face. And can you see all those peach fuzz coming out? I also like to dry shave my face, but this is a routine for teenagers, or teenagers की skin extremely sensitive होती है, acne prone भी होती है because our body goes through a lot of hormonal changes. So that's why I'm using aloe vera gel just to be on the safer side. So बहुत ही steady और slowly, बिल्कुल भी harsh नहीं होना हमारे skin में. I'm gonna remove all this facial hair. Look at all that gunk that came from my face and my facial hair. Alright, so most of my facial hair is gone. My skin also feels extremely soft to touch. I also washed my face again, not using a face wash, just some cold water so that कोई भी residue aloe vera gel का या फिर मेरा खुद का facial hair ना चिपकाओ मेरे face पे, उसके लिए. Okay, next step पे जाने से पहले, that is using toner to calm down my face, reduce inflammation from my face. This is a rose water, not a toner, but आप toner भी use कर सकते हो. My tip to you all is regarding facial razor. अगर आप facial razor use करोगे अपने face पे, do it in the night time and follow up with your skincare routine ताकि your skin can have more time to heal itself, because रात में our skin goes through this healing process. So this is a tip for you all, and I usually follow this tip only, but आज it's an exception. Okay, I'm going to use this rose water and apply this all over my face. This is Urban Botanics Natural Care 100% pure natural rose water, steam distilled. So I'm going to shake the bottle, and with some distance I'm going to spray this all over my face. Now I'm gonna fan it or press it into my skin. So इस रोज़ वाटर की स्मेल एकदम देसी रोज़ जैसी आती है. अगर आपने घर में कभी रोज़ वाटर बनाया हो ना, देसी रोज़ का यूज़ करते हुए, बिल्कुल वैसी स्मेल आती है. For moisturizers, I have two different options for different skin type. So this is Pond's Light Moisture Non-Oily Fresh. For soft and glowing skin, vitamin E and glycerin के साथ आता है. This is really great for people who have extremely oily skin, and I'm gonna be using this one today. So this is Ceramide Plus HA Intense Moisture for dry skin. This one has ceramide plus hyaluronic acid. This is by the brand Dermaco, and I will be taking this much. So I'm going to warm it up between my finger like that and then pat it into my skin. This was one step that I never used to do during my teenage days. मैं स्किन के रूटीन में मॉइस्चराइजर को इंक्लूड करती ही नहीं थी, गलत करती थी मैं. मुझे अहमियत ही समझ में नहीं आता था कि मॉइस्चराइजर हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, But this is to hydrate your skin over my eyelid, under my eyes, on my neck area and all over my face. ये रिंग निकाल देते हैं, थोड़ा सा परेशान कर रहा है वो रिंग हमें. Alright, so मैंने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया है. माई स्किन लुक्स वेरी हेल्दी, मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड. इससे पहले ड्राई सा दिख रहा था हल्का सा. आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड ताकि मॉइस्चराइजर मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. और जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है, लेट मी शो यू द सनस्क्रीन दैट आई एम गोना बी यूजिंग. For sunscreen, I have two options for different skin type again, and they both are by the brand Requel. This is really great for people who have extremely dry skin because this is a hydrating sunscreen, and I'm going to be using this one today because this one works really well under makeup as well. This is their Ultra Matte Dry Touch Water and Sweat Resistant, perfect under makeup with eye protection, non-comedogenic. This is for all skin type, and guess what? This one is SPF 50 PA+++++. So as the name suggests, this is an ultra matte sunscreen and it doesn't leave any sort of white cast
on the face, and I urge you all teenagers to invest on a good quality, high quality sunscreen. This is one product that is going to change your skincare game completely, क्योंकि आपको फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि टीनेजर्स आप एक ऐसे स्टेज में हो जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे, अपने फेस पे स्किन केयर गेम को स्ट्रॉन्ग रखोगे, आगे जाके यू डोंट हैव टू यूज लॉट ऑफ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस, you know. So it comes in this tube applicator, and I just like to directly apply this on my face like that. Okay, and you can use this under makeup, so you can skip your primer completely. It's ultra matte. अभी लग रहा है ज़्यादा लगाया है, but trust me, ज़्यादा नहीं लगाया है। So सनस्क्रीन मेरे फेस पे लग चुका है। So I'm gonna wait for 10 minutes. उसके बाद हम लोग मेकअप शुरू करेंगे, एंड लास्ट स्टेप कर लेते हैं स्किन केयर रूटीन का। दैट इज अप्लाइंग लिप बाम ऑन द लिप्स टू हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज द लिप्स। दिस इज बाय लिप्स मैकर। दिस इज इन द फ्लेवर फैंटा ऑरेंज। अच्छे से लिप्स पे लगा लो, लिप्स चैप नहीं दिखनी चाहिए, एकदम हाइड्रेटेड लगना चाहिए। Alright, 10 minutes are done. सनस्क्रीन मेरे फेस पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड दिस वाज अ वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन दैट एवरी टीनेजर शुड हैव। सो ये जो मेकअप रूटीन मैं आपको बताने वाली हूँ ना फॉर टीनेजर्स, इसका जो बेस रहेगा वो लाइट वेट का रहेगा, बट बहुत ही अच्छा दिखेगा क्योंकि हम टेक्निक्स यूज करेंगे डिफरेंट तरीके के। सो आई एम गोना बी यूजिंग अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड दैट इज एलेगल, और उसका यूज कर रही हूँ मैं करेक्टर और कंसीलर। सो करेक्टर के यूज करके मैं पहले अपने लिप्स के आसपास का जो एरिया है जहाँ पे हल्का सा पिगमेंटेशन है मुझे, उसे मैं कलर करेक्ट करूंगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करूंगी मैं, बट ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है ताकि हमारा जो कंसीलर है यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगी वो बिल्कुल भी ऐशी ना दिखे, ठीक है। यू आर गोना लव दिस स्टेप दैट आई एम डूइंग। अब देखना थोड़ी देर में ना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ, और बिल्कुल भी ऐशी नहीं दिखेगा हमारा कंसीलर। उसके बाद मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। दिस इज इन द शेड फॉन। काफी अच्छे से मेरे स्किन टोन पे मैच करता है। आई एम गोना बी यूजिंग दिस टू हाइड द अंडर आई डार्क सर्कल्स और अंडर आई बैग इशू। लिटिल गोज अ लॉन्ग वे फॉर दिस कंसीलर, एंड आई एम ऑल्सो गोना बी स्पॉट ट्रीटिंग माई फेस. And I'm going to be applying this around my mouth also. Little bit on my T-zone area. ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, बट बिल्कुल भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है मैंने। Now using my concealer brush, this is a small brush, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप स्मॉल ब्रश ही यूज़ करना ताकि आपको कंट्रोल रहे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं इसे टैप करती जाऊँगी, ऐसे प्रेस करती जाऊँगी, और ओवर माई आईलिड भी अप्लाई कर रही हूँ टू कलर करेक्ट दैट एरिया। सो आई कुडंट फाइंड अ BB और CC क्रीम फॉर मी, सो कंसीलर इट इज फॉर मी। और आफ्टर ब्लेंडिंग द कंसीलर अंडर माई आईज एंड अराउंड माई लिप्स, जो भी प्रोडक्ट कंसीलर ब्रश में बच जाएगा उसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी फॉर सम शेयर कवरेज। तो मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि माई अंडर आई डार्क सर्कल्स आर गॉन, एंड ऑल्सो अराउंड माई लिप्स नथिंग लुक एशी। अब मैं यूज करूंगी एक लाइटर शेड का कंसीलर, 1 शेड लाइटर टू माई ओन स्किन टोन। सो दिस इज बाय द ब्रांड Maybelline. दिस इज इन द शेड मीडियम 25। दिस इज जस्ट टू हाईलाइट अंडर माई आईज कि मेरा अंडर आई एरिया और मेरा पूरा फेस एक ही बेस का, एक ही कलर का लग रहा है, एंड वी वांट टू ब्रिंग बैक डायमेंशन। सो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है, इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे। ऐसा करने से आपके जो आईज हैं वो लिफ्टेड लगेंगे। थोड़ा सा टीजन में भी अप्लाई कर दो यहाँ पे। फिर उसी कंसीलर ब्रश की मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे। सो प्रेस करते जाना है ऐसे, जैसे मैं कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को भी अच्छे से कवर कर लो ताकि इनर कॉर्नर हाईलाइटेड दिखे हमारा। एंड लास्टली इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट टेक्निक आर यू यूजिंग टू डू योर मेकअप, और कितना प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो टू डू योर मेकअप। एंड डन, लुक एट माई आईज, इट ऑलरेडी लुक्स लिफ्टेड, राइट। अब अंडर आई को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर बाय फेसेस कैनेडा। काफी अफोर्डेबल है ये, और हल्का सा टिंट भी आता है इस कॉम्पैक्ट पाउडर में। सो मैं उसी पफ की मदद से ऐसे प्रेस करती जाऊंगी अंडर आई एरिया को। सो आई फॉरगॉट टू शो यू इन टुडेस वीडियो, बट आई डिड यूज द सेटिंग पाउडर अराउंड माई लिप्स। और आईलिड को भी सेट कर रही हूँ मैं ताकि वो जो क्रीज है वो ना दिखे बिल्कुल भी। और सेट करने के बाद मैं अपना पाउडर ब्रश लेती हूँ और आई जस्ट डू दिस ताकि ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को पिक कर ले। अब मैं अपने आईब्रोज को फिलअप करूंगी। अफोर्डेबल में मेरे पास 2 ऑप्शन है, दिस इज बाय Maybelline एंड दिस इज बाय फेसेस कैनेडा। और आप लोग को पता है मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं ये फेसेस कैनेडा वाला यूज कर रही हूँ। अभी छोटी दिख रही है पेंसिल, काफी बड़ी हुआ करती थी ये। तो मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज को कोम किया है स्पूली की मदद से। उसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल का यूज करते हुए अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। एकदम हल्के हाथों से मैं स्ट्रोक दे रही हूँ और ऊपर यहाँ आईब्रो आर्क एरिया को अच्छे से फिल अप करूँगी मैं। एंड देन यूजिंग माई स्पूली अगेन आई एम गोना कोम थ्रू इट। अभी अपने आईब्रोज को इंटैक्ट रखने के लिए, उनका शेप ना बिगड़े, उसके लिए एक प्रोडक्ट यूज करूंगी। दिस इज आईब्रो मस्कारा। आप लोग देखोगे कितना सुंदर लगेगा इसको सेट करने के बाद। माई आईब्रोज आर गोना लुक फेदरी, बुशी एंड नेचुरल ऑल्सो, ठीक है। एंड दे आर गोना बी इंटैक्ट लाइक दिस।
लुक एट देम विद सम डिस्टेंस। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब बारी आती है आई मेकअप की। कितने प्रकार से आप अपना आई मेकअप कर सकते हो, काजल लुक, मस्कारा लुक, आई शेडो लुक। और आज हम लोग आई शेडो लुक करने वाले हैं। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ दिस पैलेट। दिस इज निका की मोका मिक्स आई शेडो पैलेट। आई विल बी यूजिंग दिस ब्रश बाय कफ्स एंड लैशेस। और मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ विच इज लाइक अ ऑरेंजी कलर एंड मिक्सिंग इट विद दिस कलर। ठीक है, टैपिंग अप द एक्सेस और फिर हम लोग क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे। सो माई क्रीज लाइन इज राइट हेयर। सो सर्कुलर मोशन में मैं उसे प्लेस करती जा रही हूँ और आउटर हाफ में भी। डिफाइन माई क्रीज एंड व्हेन आई ओपन माई आईज यू ऑल कैन सी दैट माई क्रीज लुक डिफाइन। उसके बाद आई एम गोइंग टू बी कर्लिंग माई आई लैशेस यूजिंग दिस आई लैश कर्लर। और मैं ये वाला मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल है ये और ये वॉशेबल मस्कारा है। आप चाहो तो वाटर प्रूफ मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मस्कारा को सूख जाने देते हैं। अभी लोअर लैश लाइन को हल्का सा कॉन्टोर करूंगी मैं आउटर साइड पे यहाँ पे, ताकि आईज हमारे थोड़े से ऐसे ओपन दिखें और काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो मैं अपने ब्रश को, सेम ब्रश को ऐसे पिंच कर रही हूँ। आई विल बी पिकिंग अप दिस डार्क ब्राउन कलर और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं। And now I'm going to be applying another layer of mascara on my upper eyelashes क्योंकि वो वाला लेयर सूख चुका है। और ज़्यादातर मैं आउटर कॉर्नर पे फोकस कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, एक सालमन कलर का ब्लश है मेरे पास, वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ये शुगर ब्रांड का है। और मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ब्लश को पिक करने के लिए। टैप अप द एक्सेस और पहले मैं यहाँ पे चीक्स पे अप्लाई करूँगी। फिर आई एम गोना ड्रैग इट ऊपर ऐसे टैप करते 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 करते। फिर आई एम गोना गो लाइक दिस और फिर यहाँ पे चीक्स पे अप्लाई करूँगी। फिर टैप करते करते फेस को कॉन्टोर करूँगी। ब्लश रियली एड समथिंग टू योर लुक। फ्रेश दिखाता है आपको और ऐसा लगता है कि आपको हमेशा शर्म आती रहती है और वो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाना क्योंकि ब्लश जो है ना इट फेड्स अवे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट फेड्स अवे फ्रॉम योर फेस। अब बारी आती है हाइलाइटर की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर। माई पैकेजिंग इज़ ब्रोकन, सो मैं अपने फिंगर्स की मदद से हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी। सो पहले चीक्स पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज, और फिर फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड कर दिया। टिप ऑफ द नोज अ बिट, फिर चीक बोन्स पे ब्लश के ऊपर अप्लाई करना है इसे। ठीक है, So this is what the highlighter looks like on the face. अब बारी आती है लिपस्टिक की। ऑनेस्टली ये एक ऐसा मेकअप लुक है जिसके साथ कोई भी लिपस्टिक का कलर चल जाएगा, बट हम लोग अभी न्यूड लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। सो मैं ये वाला लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल शेपिंग लिप लाइनर इन द शेड 120 रिच चॉकलेट। और मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ मद्रास कापी बाय नायका। और ये दोनों जब सूख जाते हैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखता है। कितना खूबसूरत है ये कॉम्बिनेशन, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आती है लास्ट स्टेप की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। मैं आपको एक लास्ट ट्रिक बताऊंगी, आई शेडो ट्रिक, जो आप कर सकते हो। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप अपना आई शेडो पैलेट लो, उसमें से डार्क कलर पिक करो एक फ्लैट आई शेडो ब्रश की मदद से। टैप अप द एक्सेस और उस कलर को हम लोग हमारे अपर आई लैश लाइन के पास लगाएंगे, वेरी क्लोज टू आवर आई लैश लाइन। ठीक है, ऐसे टैप करते जाओ। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक अलग आई लुक क्रिएट हुआ और मेरे आई लैश लाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। व्हेन आई लुक डाउन यू कैन सी द डिफरेंस हियर वर्सेस हियर। हल्का सा ब्लश कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं बस थोड़ा सा लगा रही हूँ। लास्टली आई एम गोना वेयर माय ब्लैक बिंदी। So that was the last step in my makeup routine. This makeup look is so wearable. I'm wearing Indian outfit with this look, but definitely you can rock this look with any outfit possible. So अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया then make sure you subscribe to my channel for ऐसे और content. Do comment down below and let me know what other contents that you want to see for teenagers. Like this video and share this video with your friends and family. और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ with brand new content for this channel. Bye bye you all. Take care.